Who could have thought that a practice banned in 2014 called the rat hole mining would be the method to rescue the 41 trapped labourers who had been working in Uttarakhand's Silkiara tunnel that collapsed in Uttarkashi district on the 12th of November, even after modern techniques were initially deployed for their rescue. It had taken a number of state, central and foreign agencies to be part of the operation, but in the end it was 12 rat miners who were successful enough to dig a hole and rescue the 41 trapped labourers. But it was on the 28th of November that the intense site where the rescue operations were taking place could breathe a sigh of relief, with people smiling and moods of jubilation ringing around with the crowd there celebrating a postponed Diwali. In a sequence of events, vertical drilling from the top of the Uttarakhand tunnel, where 41 construction workers were trapped, had reached between 30 and 32 meters down the way, a government official said on Monday, the November of 27th afternoon. Before the operation began, the tension-filled rescue operation site was seen with ambulances flooding the area with positive hope. It can be mentioned that several ambulances were on the site from day one of the operation. And in this operation, a group of 12 rat hole mining specialists arrived at the site, initiating the manual drilling and excavation process to clear the final 10 to 12 meter stretch of debris. Renowned for their unparalleled expertise in navigating and digging through confined spaces, these miners were tasked with manually burrowing through the remaining 10 to 12 meters of rubble that separated the workers and freedom. And with the help of National Disaster Response Force, the ITBP, Indian Army personnel, and not to mention the 12 heroic rat miners from Jhansi, the 17-day-long rescue operation came to an end with none of the trapped labourers succumbing to death. Happy faces could also be seen of the 12 rat mining specialists. अंदर से कौन आएगा? And after the intense 17-day of rescue was over, Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami was seen meeting the ITBP personnel
involved in the Uttarakashi Silkyara tunnel rescue. He was seen congratulating and thanking them on the success of the rescue operation. Speaker of Uttarakhand Legislative Assembly, Silky Khanduri, in a video message thanked PM Modi, the Chief Minister of Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, and all those that took part in the rescue operation and congratulated them for their success. धाम यात्रा मार्ग पर जो सिलक्यारा में टनल था वो कोलैप्स हुआ था, लेकिन आज हम सब बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे श्रमिक भाई आज बाहर आए हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उनके प्रधान सचिव का और अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूं। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान वो श्रमिक भाइयों के साथ, उनके परिवारों के साथ खड़े रहे और कड़ा प्रयास किया, बहुत मेहनत की और आज हमारे भाई निकले हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे युवा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि हमारे श्रमिक भाई आज उनकी मेहनत की वजह से आज बाहर निकले हैं। सभी श्रमिक भाइयों को शुभकामनाएं देती हूं और साथ ही साथ जो सारी टीम, एनडीआरएफ की पूरी टीम को भी बधाई देती हूं जिन्होंने इस प्रयास को सफल किया और हमारे श्रमिक भाइयों को बाहर निकाला। आज हम जो हमारे नीलकंठ महादेव हैं, सिद्धबली बाबा हैं, उनका भी धन्यवाद करती हूं कि आज हम लोग, हमारी सरकार हमारे श्रमिक भाइयों को निकालने में सफल हुई। Speaking with reporters with a sigh of relief after an intense 17 days, Chief Minister Pushkar Singh Dhami told the media and said that the rescue mission was full of challenges. The Himalayas inspire us to remain firm and unmovable and to keep moving ahead. कैसे इसको आप लोगों ने सफल कर दिखाया? ये रेस्क्यू ऑपरेशन आपने भी लगातार कई दिनों तक यहाँ पर रहकर देखा कि बहुत चुनौतीपूर्ण था और बहुत कठिन था और कई बार ऐसा लगता था कि हम बहुत जल्दी जो है अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, मजदूर भाइयों को सबको बाहर निकाल लेंगे, लेकिन बीच बीच में कुछ इस प्रकार की परेशानी उसके अंदर आ जाती थी, समस्या खड़ी हो जाती थी। पहले दिन जब हमने इस पर काम करना शुरू किया तो ये लगा कि ये मलबा जो है जेसीबी और पॉकलैंड से आसानी से हटा लेंगे और जितना हटाते थे मलबा उससे ज़्यादा ऊपर से आना शुरू हो जाता था। फिर हम पाइप लेकर आए, पाइप हरिद्वार से, देहरादून से पाइप इकट्ठे करे, पाइप डालने का काम हुआ तो पाइप भी तेज़ी से आगे नहीं जा पाया कुछ जाने के बाद। फिर उसके बाद अमेरिकी जो मशीन है, ऑगर मशीन लाई गई, उसको एयर लिफ्ट करवाया गया इंदौर से, हैदराबाद से, उड़ीसा से, कई जगह से जो है उसके मशीनरी लाई गई, लेकिन वो भी जो है एक दूरी तय करने के बाद फिर अटक गई। फिर दोबारा चलाई गई, फिर दोबारा चलाने के बाद अंदर मशीन फंसी गई, पूरी तरह से पूरी डैमेज हो गई, पाइप भी डैमेज हो गया और ऐसा लगा कि अब तो चारों तरफ से रास्ता बंद हो गया है। फिर ऊपर से वर्टिकल डीलिंग शुरू की गई, वह भी जो है चली, लेकिन वो उतनी तेज़ी से नहीं चल पा रही थी। लेकिन फिर अंततः ये लगा कि यही काम हमारा दोबारा चलना चाहिए। फिर ऑगर मशीन अंदर जाकर जब डैमेज हो गई तो उसको काट काट के निकालना और 1-1 मीटर काट करके निकालना, कम से कम लगभग 48 मीटर अंदर जा चुकी थी, तो बहुत चुनौतीपूर्ण था। पहले उसके पंखों को काटना, पंखों को काटने के बाद मशीन को काटना। जिन लोगों ने भी इसमें काम किया है, जो हमारे गैस कटर थे, इसके आए हुए टेक्नीशियन थे, उन्होंने बहुत जीवटता का काम किया और पूरी मशीन बाहर निकाली। मशीन बाहर निकालने के बाद तय किया कि अब जो है मैनुअल इसको आगे बढ़ाया जाएगा और जो खुदाई करने वाले हैं वो मैनुअल जाकर आगे जाकर देखते थे, फिर उसको पुशिंग का काम शुरू किया। तो बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा और इसमें काम करने वाले जिन जिन लोगों ने भी अपना योगदान दिया है, मैं सबका धन्यवाद करता हूं और विशेषकर से हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने मैंने कभी ऐसा सुना नहीं कि किसी प्रधानमंत्री जी ने किसी रेस्क्यू अभियान की एक दिन भी नागा किया हो और एक से एक बारीकियों का उन्होंने जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी लेने के बाद उस पर कैसे काम किया जा सकता है, कैसे हम सबका प्रोत्साहन किया जा सकता है, पूरे लगे हुए जो विशेषज्ञ थे उनको किस प्रकार से प्रोत्साहित करना है, सारी चीज़ें उन्होंने हमको लगातार मार्गदर्शन किया। उसके कारण से हम इस कठिन अभियान को जो है सफल बनाए। बाबा बौकनाथ की भी बड़ी कृपा रही, उनकी कृपा से ये अभियान सफल हो पाया। After the rescue, the 41 trapped laborers were then taken to the Chinyalisore Health Center.
CM Pushkar Singh Dhami went to the area where he could be seen handing out an envelope and speaking to the survivors. The survivors can also be seen speaking to the Chief Minister as they thanked him for their rescue. Even the relatives of the survivors were seen thanking the Chief Minister. When speaking to the media, the CM said that the government is monitoring the health of all survivors and all necessary steps are being taken by the government to ensure their good health. अभी सभी लोगों को चिकित्सा के मॉनिटर पर रखा गया था कि उनकी एक 24 घंटे का जो डॉक्टरों के द्वारा परामर्श है उसी में देखा है। मैंने सबसे मिला है, सबके हालचाल लिए हैं। सभी लोग स्वस्थ हैं, सभी प्रसन्न हैं, उनके पारिवारिक जन भी सभी प्रसन्न हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया उत्तराखंड सरकार की। कल से पहले आप लोगों के माथे पे सिकन जरूर आता होगा, लेकिन आज सिकन दूर है। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड सरकार जी। और कौन है परिजन? आपका क्या नाम है? शर्मा नायक। कहाँ के हैं? झारखंड। आपके कौन से फंसे हुए हैं? मेरा छोटा भाई। आप खुश हैं? आप और इलाज उन्हें मिलेगा? जी बहुत खुश है। खुल के बोलिए। जी बहुत खुश है। ये हमारे झारखंड, ये हमारे 41 फंसे हुए मजदूर है भाई, जो हमारे साथ फंसे हुए थे। अब ये सब सही है, स्वस्थ है और अच्छे भी है। सब अपने अपने परिजनों से बात कर रहे हैं। बाय। ये हमारे यहाँ पे सरकार हमें रहने के लिए सारी व्यवस्था, और हमारे लिए टनल के अंदर भी सारी व्यवस्था थी, खाने से लेकर मेडिकल वगैरह सारा चीज़ थी, जो केंद्र सरकार राज्य सरकार ने की। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, इसलिए शुक्रगुजार हूँ मैं। थैंक यू।